we had no idea, we are not from event background, and right now also once again I'm saying we are not event organizers. Yeah. And we don't want. डांस भी नहीं करते हैं. The major thing, we don't dance. We are non-dancers doing the dance workshop, hosting the dance workshops thing. Trends bring you in spotlight, but again trends मेरे को नहीं लगता कि ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा आपको कस्टमर कन्वर्ट करने में. Exactly. Hello guys, this is Diya. And this is Rashi, We present you another season of the Weird and Wise podcast. So, me and Diya have always been very eager to attend any event or any workshop which is new in town, and we have a one-stop destination that we go to whenever we want to search for what's spicy happening in Surat or what's new. So, we always lined up on your page, which is the Happening Surat. तो इस कॉन्वर्सेशन को और हैपनिंग बनाने के लिए वी हैव चिराग झुंझुनवाला एंड गोविंद भूत्रा, द co-founders of Happening Surat. Hello. Hello, hi guys. Hi. So, How did you all come up with this idea, Happening Surat? Like, क्या name कैसे मिला? हाँ, That's वही, the name. more. So the story behind the name was कि everybody used to say that one thing कि सूरत में तो कुछ happening ही नहीं होते. जो भी जैसे particularly the people who are staying in सूरत उनके लिए ऐसा था कि वो compare करते अपनी लाइफ जो बाहर जा रहे हैं उनसे. सबसे major चीज. So without being alcohol in सूरत, they had nothing to do except going to cafes. तो उनका ये एक प्रॉब्लम था, एक मतलब कि एक हमेशा से माइंडसेट था यार सूरत में कुछ करने को ही नहीं. एंड आई यूज्ड टू से एवरी टाइम कि यार है तुमको पता नहीं है. होता तो बहुत कुछ है बट यू डोंट गेट टू नो अबाउट. या तो होने के बाद पता चलेगा कहीं रील से कहीं स्टोरी से. सो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट आया कि यार वो नेम आया, इट्स हैपनिंग सूरत. सूरत हैपनिंग तो है तुमको पता नहीं है. सो दैट्स वेयर द नेम केम. Interesting. Yeah, it's an amazing name. मतलब बहुत simple है, but it catches up, and I totally agree because I remember I shifted to Surat from a metro city 6 years ago, and I said the same line कि इधर तो कुछ happening ही नहीं है. You can go to cafes, you can go to movies, and that's it. But then इतने workshops, इतने concerts, like a lot of interesting things are happening. It's not only about alcohol and all of this, and we are super grateful to the page that we come to know about these things. नहीं तो पता ही नहीं चले. And to be honest, I feel कि बहुत rapid increase हुआ है, growth हुआ है Happening Surat का, because everyone like who's like eagerly waiting to attend events, तो उन लोग का तो one stop like ऐसा destination Happening Surat पे देखते हैं, उधर तो कुछ ना कुछ तो events होगा ही. तो just let's open the page. Yeah, absolutely. मतलब we also have some of our friends की जैसे अगर एक दिन the story is like 2 hours 3 hours late, no that update, so they just call us. मतलब यार toll free number नहीं है ये. This is just a page, this is not a toll free number. So literally they just call यार तूने update नहीं किया, हम लोग देख रहे कहाँ जाना है, update नहीं. उनको ऑफिस टाइम पे चाहिए, मतलब ऑफिस में वो देख लेंगे तो उस हिसाब से निकलेंगे. Right. In morning only, morning 3-4 hours they see the updates, they share it with their friends कि रात का plan बनाने के लिए. So हम लोग के पास वो pressure है कि we have to update it a night before. Okay, आपकी एक ऐसे like टीम है जो, Yes. तो वो ऐसे रेडी कैसे हो रहा है? कितने लोगों का टीम है? Basically, we have a team of 6. 2 are not from Surat, they are working from home, and 4 are from Surat. Basically, जो page है, page के लिए we need team of 2 only. We both, and we have 2 other people from Surat for on-ground team. Okay. For collaborations, the events we collaborate with, उनके साथ जाना पड़ता है. Sometimes you have to cover the event. तो हम लोग को भी जब हमने पेज स्टार्ट किया था तब हमको भी नहीं पता था कितनी चीज़ें होती हैं. हमको पता था इवेंट्स होते हैं, बट एज एंड व्हेन वी स्टार्टेड वी गेट टू मतलब गॉट टू नो कि इतनी चीज़ होती है कि हम लोगों को भी लगा था ठीक है कॉन्सर्ट्स होते हैं, कैफेज में कुछ लाइव म्यूजिक होता है. तो एक डाउट ये भी आया था पहले कि जैसे कैंडल लाइट डिनर, अगर किसी को कभी कैंडल लाइट डिनर किसी के साथ जाना है तो वो अपडेट आप गूगल पे भी नहीं मिलेगा, आप कहीं पे भी ढूंढो. बेसिकली यू सर्च, तो सर्च में भी आपको मिलेगा नहीं. इंस्टाग्राम में भी इफ यू सर्च द कीवर्ड कैंडल लाइट डिनर तो आपको वो इन जनरल सूरत के नहीं मिलेगा. फिल्टर आउट करना वो बहुत डिफिकल्ट है. तो वो चीज़ को फिल्टर आउट करके स्पून फीडिंग करना हम लोग का काम है. अभी जैसे आपका लाइक ग्रोथ है, Yes. तो लोग सामने से आते हैं आपके पास कि हमारा ये इवेंट है आप प्लीज रखो, या फिर आपको जैसे ही पता चलता है यू जस्ट पुट इट ऑन द स्टोरी?
सामने से आते हैं, मतलब 90% सामने से आते, बट वी प्रेफर कि हम लोग को वो डेटा पहले से ही होता है हमारे पास, वो हमने उस तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है। So basically एक funnel बनाया हमने, so that funnel is only that team is working on Okay. कि we try to get the events के details जितने भी होते हैं ना a week prior. So we launch a reel mostly every week. कोई weeks हम लोग नहीं करते जिसमें बहुत कम events होते हैं और या तो late updates होते हैं. बाकी mostly every week we launch a reel. What's happening in Surat, Yeah. events, updates for the week. Yeah. So basically उनको concept इसलिए था क्योंकि हम लोगों के पास पहले इतने सारे टेक्स्ट मैसेज आए कि आप इवेंट्स को पहले से अपडेट क्यों नहीं करते. सेम डे तो हम लोग के पास अपडेट सही पड़े, लेकिन पहले से अपडेट करने से फर्क पड़ता है कि दे गेट मतलब प्लान्स बहुत इजीली बन जाते हैं. तो उसके लिए फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे हमको अपडेट मिला कि टिकट्स के लिंक फाइंड करने में उनको डिफिकल्टी होती है. तो हमने एक लिंक ट्री बनाया हमारे पेज पे कि उसमें लिंक ट्री में पर्टिकुलर वीक के सारे इवेंट्स के लिंक्स होते हैं. सो और वो लिंक भी हम लोग हमारी स्टोरी में अटैच करते हैं. सो डेट, टाइम, वेन्यू एंड इवेंट लिंक. बेसिकली आपको स्टोरी पे, इफ यू आर रीडिंग द स्टोरी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. So you guys started for the motive कि हमको word spread करना है कि ये event हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. Yes. Then how did you venture into the organizing part of Yeah. the events? So that's the most interesting thing in our Shehzad story. Khan. Yeah. It was a bomb. Shehzad Khan was it was the second one. First we hosted Harsh Kumar. Okay. Oh, okay. The Dum 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 with that Dum, went yeah. down. Yeah. So उसके पीछे भी concept था कि in Mumbai, जैसे मुंबई there are multiple studios, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली. Boost हुए reels, boost हुए. Dance and dance. And that was the phase जहाँ Dum Dum boost हुआ. And then again दिन में minimum 3 to 4 reels he used to share with me. ये क्या है, ये क्यों इतना है. तो कहीं ना कहीं वो वेव आया. And we used to promote dance workshops also. That's happening in the small scale सूरत में. तो हम लोग को एक वो किक मिला यार, वो है तो सही, बट सूरत में अगेन वो एक कहीं ना कहीं पॉइंट था कि और हैपनिंग और फन. अगेन कुछ ना कुछ एलिमेंट सबको चाहिए कि वो कुछ डिफरेंट जो साल में 1-2 बार हो रहा है. हाँ. या बहुत लिमिटेड चीज़ हो रही है या कुछ एक्सक्लूसिव हो रहा है जो सूरत में रेगुलरली नहीं होता. तो मैंने एक जस्ट थॉट दिया कि यार बुलाते हैं, let's invite the artist. We had no idea, we are not from event background, and right now also on screen I'm saying we are not event organizers. Yeah. And we don't want. तो डांस भी नहीं करते हैं. the major thing, we don't dance. We are non-dancers doing the dance workshop, hosting the dance workshops thing. So artist का भी हमेशा यही कहना है कि पूरे इंडिया में you are the only ones जो without being from dancing background or without being the artist background you are doing these things. तो it was just a random thought. हमने उनको invite किया और उनको वो स्टूडियो में नहीं करना था क्योंकि अगेन स्टूडियो में तो हो ही रहा था. We wanted something big to give that artist also something big. तो आर्टिस्ट को हमने बिग दिया कि आर्टिस्ट को हमने प्रॉमिस किया कि विल बी गिविंग यू द बिगेस्ट वन इन योर ओल्ड इंडिया टूर. उनका इंडिया टूर स्टार्ट हुआ था. तो हमने उनको अप्रोच किया था इंडिया टूर के लिए कि वी वांट टू ऐड सूरत इन इंडिया टूर. बिकॉज जब तक वो स्टेज था ना हमको एक पॉइंट क्लिक हुआ कि हैपनिंग थिंग्स तो सूरत में हो रहे हैं, धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ एलिमेंट जो नहीं हो रहे, जो कुछ कोई और कर नहीं रहा, तो वो लेके आएंगे. हमारा हमेशा से मोटिव है जो ऑलरेडी चीज़ें हो रही है ना उसको तो हम क्लिक नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स अगेन रिपीटिंग दोज थिंग्स एंड वी डोंट वांट टू डू दैट. समथिंग डिफरेंट होगा तो हम लोग करेंगे वरना नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग पर्टिकुलरली. ऐसे we were like thinking only कि इसको सूरत में कौन लाएगा, कोई तो लाओ because That's हम what- चार that's what. are like crazy dancers. But I have not seen you guys in any of the workshops. Oh We my god, we came to attended. the Shehzad Khan. That was We the might know. only workshop where 4 of us could come together. Yeah, that was Okay. Shehzad Khan. Yeah, and उसमें भी शायद venue last minute तक I guess it was हाँ. not fixed. तो every day 4 of us were like on the page कि अब venue आया And I think we were the happiest जब Happening सूरत ने announce किया कि Shehzad Khan है. Like okay. we were are dancing attending. already to rock the Okay. Lashkara. So that was the moment जब हमने शेहजाद खान को इनवाइट किया. मतलब it was his phone call, it was his phone number, and he was like भाई फोन नहीं रुक रहे. Exactly. Because first Harsh Kumar था, and second time only, and second time मतलब we had changed the location 4 times, literally 4 times. Page पे हमने रिवील नहीं किया था, but again 4 times. क्योंकि हमको नहीं पता, the moment we are changing the location, it's getting booked. मतलब full jam packed.
फिर तो इसमें रिस्पॉन्स का ग्राफ ही ऐसे था, मतलब कि पहले अगर समझो 10 लोगों का सोचा हो, फिर 20 का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आर्टिस्ट भी वो भी हैप्पी है कि वैल्यू मिल रही है सिटी से, फिर 30 फिर 40, तो वो ग्राफ ऊपर ही गया। तो लोकेशन हम भी कैसे फाइनल करते, फिर फाइनली एक तो हम लोग का टारगेट भी वही था, जैसे हर्ष कुमार को भी गिव द बिगेस्ट 130 प्लस पार्टिसिपेंट्स इन दैट वन इन ओपन एयर डांसिंग। सो ही आल्सो हैड दैट डिफरेंट एक्सपीरियंस। हमेशा से वो डांसर्स ने भी आउटसाइड लिया था, मतलब इनसाइड लिया था स्टूडियोज में, तो वी गिव देम द आउटसाइड टर्फ वाला एक्सपीरियंस या K2 पे। तो K2 पे उस समय वी डिडंट हैव एनी आइडिया ओनली हमको कहाँ से स्टेज बनवाना है, हमको कहाँ से साउंड करवाना है, हमको कहाँ से क्या करना है। एंड इट्स बीन अ थिंग दैट हमेशा से जो हमारी टीम है, we didn't create our team, it got created. We didn't, मतलब आज तक मेरे को याद नहीं मैंने किसी को फोन किया कि यार come let's join my team ऐसा वैसा। It got created and we have people कि कभी भी any time I need it for मतलब पेज के लिए कुछ भी काम के लिए ना तो they are there। हर्ष कुमार वाले टाइम भी हम लोग को जरूरत पड़ी थी approximately 4 to 5 लोगों की, and all of them are there. I don't know who are working what, मतलब कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है, बिकॉज उस समय आई एम ऑल्सो इधर उधर इधर उधर, बस इट हैपेंड। तू कर भाई, हम लोग खड़े हैं पीछे, तू इतना टेंशन लेके क्यों घूम रहा है, तू कर, हम लोग खड़े हैं पीछे, ये संभाल ले। एंड मेरे को हैपनिंग सूरत के नाम से एसोसिएटेड इनका ही नाम है बिकॉज ऑफ द लॉन्गर लश्कारा वर्कशॉप वी वर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद हिम ओनली। हमने उनको बहुत पेस्टर किया है। फैक्ट ऐड करता हूँ, अभी भी है ना मेरे नंबर पे आप देखोगे ना, ट्रू कॉलर पे मेरा नंबर पे मेरा नाम ही नहीं है। वो ऐसे शहजान खान डांस वर्कशॉप ऐसे सेव है, क्योंकि वो मल्टीपल लोगों ने सेव किया होगा, सर्च किया होगा। एग्जैक्टली, मैंने भी वही सेव किया था, शहजान खान डांस वर्कशॉप। Yeah, so a lot of people, जैसे right now we are hosting more than 6 artists. So again and again लोग जो जैसा उनको प्रेफरेंस होता है वैसा सेव करते हैं। तो कोई दूसरे आर्टिस्ट के नाम से सेव कर रहा है, कोई दूसरे आर्टिस्ट के नाम से सेव कर रहा है, तो इसका ट्रू कॉलर पे नाम ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। एंड पीपल आर लाइक, मतलब अब वो अगर कोई पार्टिसिपेंट है वो बाहर पढ़ते हैं और सर्टन टाइम के लिए सूरत आए, वो मैसेज ड्रॉप करके जाते हैं कि फेब में कोई वर्कशॉप होने वाला है तो उनको प्लीज़ प्रायर बता देना, या मार्च में ये आर्टिस्ट को बुलाने वाले को प्लीज़ प्रायर बता देना। मतलब यार वी आर गेटिंग हमको भी कम्युनिटी। प्रायर बता देना। Then also basically जितनी बार मैसेज आता है ना इंस्टाग्राम पे, a lot of people मैसेज ऑन इंस्टाग्राम कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है या अराउंड 20 डेज बाद क्या होने वाला है, बिकॉज दे हैव सम गेस्ट कमिंग ओवर। सो एक पॉइंट पेज का स्टार्ट करने का ये भी था कि हम लोग को भी जैसे गेस्ट आते हैं सूरत के बाहर से, तो मैक्सिमम 2 days यू कैन एंगेज देम। थर्ड डे दे गेट बोर्ड एज इन कि डिफरेंट नहीं है कुछ करने के लिए। अगेन द सेम थिंग, डुमस जाना पॉइंट पहले मेरे को लगता है अब वो इतना नहीं रहा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं तो इधर से मतलब चक्कर मार के आते हैं। हाँ कि मतलब इधर मतलब ब्रेकफास्ट इन द कैफेज और द भजिया, नथिंग एल्स, मतलब दे डोंट गो फॉर मतलब ऐसे आउटिंग के हिसाब से वहाँ पे। फिर इवनिंग टाइम है, डे टाइम है तो कैफेज, कॉफ़ी शॉप्स, ज़्यादा से ज़्यादा गेम जोन्स। उसके अलावा कुछ क्लिक नहीं हो रहा था कि क्या करें। तो वो एक पॉइंट था हम लोग को, यार मेरे को मिला कि यार मैं आई यूज टू लुक फॉर इवेंट्स कि कुछ हैपनिंग हो रहा हो या कुछ इवेंट हो रहा हो तो आई कैन टेक माई गेस्ट ओवर देयर, तो उनके लिए भी दैट्स एन एक्सपीरियंस कि हो सकता है उन जहाँ पे बोल रहे थे वहाँ पे नहीं होता हो। तो वी यूज टू फाइंड दैट, तो दैट गॉट मल्टीपल पॉइंट्स एंड पेज का स्टार्ट होने का पॉइंट वाज समथिंग लाइक दैट ओनली कि वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, अब जैसे हम लोग ने बहुत ज़्यादा सोशलाइज किया, मतलब बीइंग इन DPS दैट वाज अ डिफरेंट पॉइंट, मतलब कि सो मेनी फ्रेंड्स एंड कहीं ना कहीं एक आदत होती है कि यार अगर कोई आपका फेवरेट आर्टिस्ट आ रहा है या आपका कोई फेवरेट इवेंट हो रहा है तो यू विल पुट इट अप ऑन इंस्टाग्राम और यू विल शेयर इट इन द फ्रेंड्स ग्रुप। तो हम लोग तो लूप में थे ही, वी बोथ वर इन द लूप, मोस्ट ऑफ द इवेंट्स में हम लोग लूप में थे। तो फैमिली मेम्बर ने एक को जैसे कुछ अप्रोच हुआ, मैंने बोला यार ये हो रहा है ऐसे ऐसे, तो शी वाज लाइक यार तू तो चलता फिरता बुक माई शो है। उनका वो एग्जैक्ट ये लाइन था, तू तो चलता फिरता बुक माई शो है, तो उनको पहले बता दिया कर। मैंने बोला यार क्या मेरे को जो पता है मैं आपको एक कॉल करके बोलूँगी। तो दैट्स व्हाट द पॉइंट केम फ्रॉम, यार एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ पे जो इवेंट्स हमको पता है, हमको अपडेट्स पता है, वो उनको पुट अप करना है, क्योंकि अपडेट्स तो ऑलरेडी मार्केट में है बट इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड। गूगल पे भी देयर इज अ फीचर इवेंट्स अपडेट्स का, बट अगेन एवरीबडी डज नॉट अपडेट देयर। लोग ढूंढने के लिए ढूंढते हैं बट अगेन वहाँ पे भी प्रॉपर कीवर्ड से नहीं आता। पीपल कैन मल्टीपल टाइम्स उसको अपडेट कर सकते हैं, तो वो बहुत सारा मतलब हेजी हो जाता है उसमें कि आप कितना ढूंढोगे। एक ही इवेंट को आप 10 टाइम्स भी उसमें लिस्ट कर सकते हो, वो नेगेटिव पॉइंट है कहीं ना कहीं। तो हम लोग ने वो एक पॉइंट्स ढूंढे कि हम जो सोच रहे हो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हो रहा है बट वो ऑर्गेनाइज नहीं है।
तो दैट्स वेयर हमने स्टार्ट किया. पेज वाज स्टार्टेड अ मंथ अगो, जब से फंक्शन हुआ. और उसके पीछे एक पॉइंट था. पॉइंट बताओ. वो मतलब एक खाली बोलो ना किक थी कि एक फोमो था बेसिकली, बीइंग हाँ. वेरी फ्रैंक कि यू नो हमने बाय चांस हमारा आइडिया कहीं पे बता दिया था एंड यू नो इट वाज अ फोमो की साला वो ना कर ले. तो बोला भाई तू बना के नक्की कर, बाकी अपने आगे का आगे सोचेंगे. तो हमने पेज बना दिया. पेज वाज क्रिएटेड आई थिंक अराउंड 10th of November 2022, समवेयर अराउंड दैट. उसके बाद हमने कुछ फंक्शन नहीं किया, जस्ट पेज बना के छोड़ दिया एंड वी रोट दैट बायो थिंग कि व्हाट्स हैपनिंग इन सूरत, गेट अपडेट्स अबाउट दिस. तो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली पुशेस दैट थिंग पेज. Okay. जैसे आपने पेज बनाया तो इट हैज माय क्रेडेंशियल्स ओनली. दैट टाइम इट हैड माय क्रेडेंशियल्स ओनली. तो मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मेरे म्यूचुअल से इट विल शो ऑन देयर पेजेस. न्यू करके क्लिक होगा. तो रैंडमली वी स्टार्टेड गेटिंग फॉलोअर्स 1 2 3 4 5. मैं बोले 5 फॉलोअर्स ने मैंने कुछ डाला नहीं है, कुछ किया नहीं है, दे आर फॉलोइंग. तो मतलब दे आर थिंकिंग दैट कुछ तो वैल्यू मिलने वाली. तो आफ्टर 1 month हमने ऐसे रैंडमली एक दूसरे से बात की थी एंड मेरा वो जानबूझ के आइडिया ही था कि आई सी दैट आइडिया टू समवन सो दैट आई हैव फियर कि अगर मैंने नहीं किया तो कोई और करेगा. एंड दैट नाइट आई मेड अ स्टोरी, जस्ट अ रैंडम स्टोरी. वो भी शायद मेरे को पता नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे ही खुद बनाई थी, नॉट एडिटेड नथिंग. उस पर बनाई कि व्हाट्स दिस पेज अबाउट एंड व्हाई यू शुड फॉलो इट. आई पुट अप द स्टोरी, एक्सक्यूज मी, एंड नेक्स्ट डे there are hundreds of stories of the same thing. Our friends के friends, mutual friends, मतलब पता नहीं कौन कौन. And single day we had the target कि यार single day में हम लोग को देखना है क्या response मिलता है 24 hours. 15th of December की late night को updated the story and 16th of December before 12 AM we had 500 followers. वो तो ऐसा पीक था कि हमको समझ ही नहीं आया. प्रेशर आ गया और उसमें जो उस दिन शाम को हम मिले तो हमारा डाउट पता है क्या, अपडेट लाएंगे कहाँ से. Oh my God. हमने पेज बना दिया एंड देयर आर 500 फॉलोअर्स. हमको ये नहीं पता अपडेट लाना कहाँ से. इट वाज जस्ट अ रैंडम आइडिया. एंड दैट नाइट वो तो रात को मैं सोया ही नहीं था 16th को, बिकॉज मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि मेरे को नेक्स्ट डे से अपडेट देना है. अगर फर्स्ट डे से ही अपडेट नहीं मिला जो मैंने मेरे बायो में लिख दिया है, ऑटोमेटिकली मतलब नेगेटिव थॉट जाएगा लोगों के दिमाग में. मैं लिटरली उस दिन रात को पूरा बैठा हूँ, एक एक अपडेट मैंने खुद मैनुअली ढूंढा. एंड दैट्स अ बिग प्रोसेस, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है. और उस समय मेरे को पता भी नहीं था कहाँ से ढूंढना है, कैसे ढूंढना है. आई केप्ट ऑन डूइंग दैट. इट टुक मी अराउंड 4 hours, 4.5 hours रात को. एंड मॉर्निंग 5 AM आई एम विद द लिस्ट. उसमें भी मेरे को डर पता है क्या है, कुछ छूट तो नहीं रहा. मैं इसको बोला कि भाई कुछ छूट रहा है, तो इज लाइक रुक मैं ढूंढता हूँ. वी बोथ आर ऑन दैट फाइल कि ढूंढना है. अपडेट किया. स्टार्टिंग में 10 days हमने कंटिन्यू अपडेट किया. मतलब लिटरली स्टार्टिंग के 6 months तो मेरे को याद नहीं एक दिन सोया हुआ बिना अपडेट किए, क्योंकि मेरे माइंड में प्रेशर था कि नेक्स्ट डे अगर किसी ने भी मैसेज कर दिया कि अपडेट नहीं हुआ या किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर का भी मैसेज आ गया, सो अगेन दैट्स अ फ्री थिंग, सो नोबडी कैन क्लेम दैट थिंग, बट अगेन इट वाज अ रिस्पांसिबिलिटी टू गिव दैट थिंग. Which batch were you in DPS में? 2020 मैं बैच याद कर रहा हूँ. 2020. ओके, तो मतलब आपने ये स्टार्ट किया तब हाउ ओल्ड वर यू गाइस? लाइक जस्ट अ 20. रैंडम क्वेश्चन. यू वर जस्ट 20. Okay, and now you're doing this full time. Full time, yes. As in, I am into full time business as well, family Okay. business as well. And I am doing full time job as well. I am into marketing profession. Oh, okay. So this is like the second shift. एक मेजर कंसर्न है मेरा दैट व्हेन वी डू अ एपिसोड और पॉडकास्ट हम कुछ भी करते हैं तो वी आर 6 people 7 people मैक्स. तो भी इतना केओटिक होता है वो चीज़ कि people arriving on time, my camera, card and so many things like location. तो आप तो मतलब कितना लार्ज स्केल इवेंट्स, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग पार्ट की. एंड शेजान खान तो मतलब आप तो सोए ही नहीं होंगे 1 महीने से उस चीज के लिए. तो हाउ डू यू हैंडल अ लास्ट मिनट? So last minute जितनी भी चीजें फंबल भी होती है ना कई बार, there are a lot of things. And right now also we are into small workshops as well. Yeah. And a few days back we organized a games night as well. Games night at Treasure. So that was something new. We also didn't know क्या करना है, but it was a random thought कि करना है.
बस मेरे को नहीं पता, इसको नहीं पता, हमारी टीम को नहीं पता क्या करना है, बस करना है। मतलब लिटरली बिफोर दैट टेकिंग प्लेस, मतलब 3 आवर्स पहले भी हम लोग को पता ही नहीं है कि कौन क्या करना है। एंड दैट्स वेयर वी सैट। मैंने एक ही चीज़ बोली टीम को कि लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिकॉज अगर एक चीज़ है जो मैं बोलूँगा मैं कर रहा हूँ एंड सेम टाइम कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो कभी नहीं हो सकता। एंड द मेन थिंग जो हमारी टीम में है ना, डिसीजन मेकिंग पावर। एवरीबडी हैज़ देयर ओन डिसीजन मेकिंग पावर, कि किसको पता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको कहाँ पे क्या डिसीजन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं होगा ना तो नहीं वर्क कर सकते। मतलब लिटरली अगर 2 लोग की भी टीम है एंड वो दोनों को नहीं पता है कि वो दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो टीम नहीं वर्क करती। क्योंकि हम दोनों के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है कि राइट नाउ जैसे अपडेट्स पार्ट इज होल माइन एंड द टीम। तो टीम को भी मेरे को हैंडल करना है। जो 2 लोग हैं उनसे अपडेट्स कैसे क्या फनल अप करना है, प्लॉट डाउन करना है। सो दैट्स माय जॉब। ही हैज नथिंग टू डू इट, कि मतलब उसको करना ही नहीं है। इसके पास कुछ है, मतलब ही वांट्स टू गिव समथिंग सो ही कैन गिव, बट अगेन ही विल नॉट इंटरप्ट दैट, ही विल डू ऑल द ऑन ग्राउंड थिंग। बेसिकली वी रन लाइक अ रिले, कि मतलब इतना मैं दौड़ूंगा, फिर तू दौड़, फिर मैं दौड़ूंगा, फिर तू दौड़, उसके बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अभी कुछ स्पाइसी आ रहा है सूरत में, सो वी वोंट मेक एनी प्लान्स। Spicy, so right now as of dance workshops, Yeah. Feb में dance artists are coming again. We are trying to do that thing the whole year. We are trying to do that thing the whole year. We are trying to bring artists and not do an event. So actually it's not an event, not an event मतलब कि starting में तो actually he came for the first time, so हम लोग को वो event करना पड़ा। हमारा motive नहीं था, because motive is for that dance workshop thing. People learn that dance. अभी भी लोग डांस क्लास जाते थे पहले, बट अगेन अब वो ट्रेंड आ गया कि 2 घंटे में डांस सीख के उसको शोकेस करते हैं। तो हम लोग का पर्पस वही है, और लॉन्ग टर्म में वी आर प्लानिंग उसको हम लोग ऑटोमेट भी कर रहे हैं धीरे धीरे। वी हैव अ टीम रेडी, वी हैव सम लोकेशंस रेडी, तो उस पे वी आर वर्किंग ऑन एंड वी आर ट्राइंग टू पुट अप डांसेस रेगुलरली, मोर फन डांसेस, मोर क्रेजी वंस, कि जो अब लोग देख के फोमो होता है यार हम कब करेंगे, वो सूरत में होगा। एंड अगेन except dance workshops, we are trying to bring something different as well. Yeah. Not for the purpose of organizing events, but bringing something different to see. जैसे डांस वर्कशॉप का अभी पीक क्रेज था, Yes. तो अभी भी उतना है कि वो डाउनफॉल आ गया है। No, so सूरत का crowd is very much volatile, मतलब बहुत volatile, and he knows it better. मतलब वो लोग को जब समझो आपने मुझे आज मैसेज किया एंड वर्कशॉप 10 दिन बाद है, फिर आप 8 दिन गायब हो, 9वें दिन पे आप फिर मैसेज करोगे, फिर आप 1 दिन गायब हो, 10वें दिन पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि वर्कशॉप के आधे घंटे पहले मैं आपको बैठ के आपसे चैट करूँ, आपको पूरा रिवर्ट दूँ। वो ऐसा है, वो लास्ट मिनट वाले सूरती लोगों की आदत है उसको कुछ करना पड़ता है। So अब ये चीज़ होती भी है, जैसे जितने भी आर्टिस्ट है बाहर के, so they are like 15 days प्रायर आपको पोस्टर अपलोड करना है, 15 days प्रायर अपलोड करने, बिल्कुल नहीं। सूरत इज लाइक एंड मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे कभी वो रिजर्वेशन वाला चीज़ें ये सब कभी लोगों ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। क्योंकि सूरत बेसिकली बीइंग अ स्मॉल सिटी, सब लोग को है कि इसको फोन करता हूँ जाए, सबसे बड़ी चीज कॉन्टैक्ट्स। किसी को भी कुछ भी हो ना, देयर आर म्यूचुअल्स। लिटरली हम लोग कुछ भी करते हैं, जो इवेंट्स हमारे नहीं भी होते अपडेट्स करते हैं, तो इवन इफ देयर इज अ प्रॉब्लम है उसमें कुछ इवेंट में, या दे आर नॉट गेटिंग समथिंग, कहीं ना कहीं हमारे पास कॉल आए यार ऐसा है, हमको लिंक नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, हमको नहीं मिल रहा है। सो दैट वाज द पॉइंट, हमने एक हैपनिंग सूट का डिफरेंट नंबर भी दिए थे। सो नाउ वी हैव अ स्पेशल नंबर आल्सो, कि वी डोंट वांट टू शेयर आवर पर्सनल नंबर, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो एक लूप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो अभी इसका इट इज हिज पर्सनल नंबर फॉर द रजिस्ट्रेशन थिंग, बट अब अगेन अब हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर मोर देन 2000 पीपल ट्रैकिंग ऑन दैट थिंग फॉर द वर्कशॉप इन पर्टिकुलरली। तो हम लोग ने इसीलिए वो तो चेंज नहीं किया। सो नाउ वी हैव डिसाइडेड कि ये नया नंबर लेगा। हैपनिंग सूरत का जो डील्स वाला नंबर है फॉर द इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग थिंग, मतलब कॉर्पोरेट थिंग, एवरीथिंग, दैट्स अ डिफरेंट नंबर, एंड हिज नंबर इज ओनली फॉर द पर्टिकुलरली रजिस्ट्रेशंस। सो लाइक वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि कोई तो है सूरत में जो लाइक जो चाहता है कि हाँ हैपनिंग हो कुछ। आई थिंक इट्स लाइक अ वेरी ह्यूज स्टेप टू टेक, बिकॉज अगेन ये मेजर स्टेप इसलिए था बिकॉज आई वाज आल्सो वन ऑफ देम कि जो सूरत के बाहर नहीं गया, जो इधर इंटरेस्टिंग चीजें करना चाहता है। सो आई हैव द अपडेट, बट अगेन आई आल्सो वांट ना पीपल टू नो दैट अपडेट, पीपल टू कम ओवर दिस, जब तक वो और हैपनिंग बनेगा, बिकॉज
वो भी उसका भी स्केल तब बढ़ेगा जब लोग आएंगे। आज एक नॉर्मल से मॉडल है, कोई भी बिजनेस ले लो, लाइफ ले लो, कहीं पे भी एक जैसे बिजनेस मॉडल है, तो एज एंड व्हेन जैसे क्राउड स्टार्ट होता है, पुल अप होता है, धीरे धीरे एंगेजमेंट बढ़ता है, देन दैट्स वेयर द पॉइंट ऑफ बिजनेस विल स्टार्ट ग्रोइंग अप और एक्सपेंशन थिंग। तो इवेंट्स में भी सेम है, इवेंट्स में भी अगर धीरे धीरे स्मॉल इवेंट्स, वी वांट टू प्रमोट द मेजरली स्मॉल इवेंट्स। बड़े इवेंट्स में तो ऑलरेडी प्रमोशन हो रहा है, बैनर्स लगते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशंस होते हैं, बट अगेन स्मॉल वंस दे डोंट हैव दैट चार्ज, मतलब दे डोंट हैव दैट फीस कि वो अलग से अपने उस चीज़ को प्रमोट करें। तो वी वांटेड टू मेक दैट पर्टिकुलर फोकस ऑन दैट वन, कि अगर वो हम लोग कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे स्मॉल इवेंट्स हर जगह होंगे, बिकॉज सूरत में लोकेशंस है, दे हैव द रिसोर्सेज, बट वो क्रिएट कर रहे हैं तो लोग नहीं आ पा रहे, लोग आ रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो वी आर ट्राइंग टू पुट देम ऑल टुगेदर। पहले ये फोमो होता था कि क्यों नहीं गए, अब ये फोमो क्रिएट करेंगे कि कहाँ जाए। आप लोग को ऐसा नहीं होता कि मतलब कितने लोग अप्रोच करते होंगे कि भाई फ्री में सेटिंग करा दे या फिर कुछ कर ले, मतलब लास्ट मिनट एकदम आउट ऑफ दैट लीग। और लिटरली हमको भी अब एक्सपीरियंस, हमको भी अब समझ में, पहले तो वी यूज्ड टू आल्सो कॉल ना कि फ्रेंड्स को कोई इवेंट होता तो यार, क्योंकि कहीं ना कहीं वी गॉट टू नो दैट कि यार उसका कोई म्यूचुअल, उसका कोई म्यूचुअल है, तो अब हमको समझ में आता है इट्स वेरी मच दैट प्रॉब्लमैटिक थिंग। बिकॉज कई बार होता है कि जैसे हमारे खुद के वर्कशॉप से हमारी खुद की चीज़ें हैं, तो दैट्स वेयर वी कैन अरेंज समथिंग, और द एकदम क्लोज्ड वंस जिसको हम नहीं बोल सकते ना, तो उसके लिए वी कैन अरेंज। बट अगेन जो हमारे इवेंट्स नहीं भी है, सो पीपल कंसिडर दैट वो भी हमारे इवेंट्स। मिसकंसेप्शन कई बार होता है, जैसे कोई इवेंट्स होते हैं, जैसे इवेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो दे कनेक्ट विद अस कि यार ये हैपनिंग सूरत का इवेंट था, तो उधर हमको क्लैरिफाई भी करना पड़ता है दैट इट वाज नॉट आवर इवेंट्स, वी वर जस्ट द अपडेट्स पार्ट। सो इन मोस्ट ऑफ द इवेंट्स राइट नाउ वी ट्राई टू कोलैबोरेट विद देम एज द अपडेट्स पार्टनर। तो आप उसका लाइक सोशल मीडिया जो हैंडलिंग है वो भी आप खुद करते हो या यू हैव? नो, सो बेसिकली जो टीम है सब मिलके करते हैं। या सो फाइनल प्रोसीजर इज गोस थ्रू मी। Apart from paid collaborations and all of that, what is your secret sources as a revenue generation के? Okay, Yes. so for the revenue thing, in the starting जैसे हमने किया था, तो स्टार्टिंग में हम लोग का एक मोटिव था, पहली चीज़ तो ये, this was not for the earning purpose in the start, because वैसे भी right now also I'm into full time business, I'm into textile business basically, my family business, and he does his job, so he's from marketing field, so he brings his expertise, I bring my expertise. तो उसमें हम लोग के पास एक पॉइंट था कि यार अर्निंग पॉइंट हम लोग को स्टार्टिंग से कुछ भी करना है, तो वी डोंट हैव टू क्रेव फॉर दैट अर्निंग थिंग। एंड स्टार्टिंग में सोशलाइजिंग हमारा पॉइंट था। और एक प्रॉब्लम सोशलाइजिंग का क्या था कि सूरत में, बीइंग इन सूरत, बीइंग इन गुजरात, सोशलाइजिंग एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज भी आस्किंग यू गाइस आल्सो कि व्हाट पॉइंट्स डू यू हैव, मतलब वेयर आर द पॉइंट्स दैट यू सोशलाइज। अब being in the community, you are doing this thing, you are running a podcast thing, so you get to know people, आप लोगों से मिलते हो, करते हो, बात करते हो, you get that point, but without being that, आप socialize कहाँ पे कर सकते हो? लास्ट आपने कब किसी अनजान से बात की होगी? हाँ, रैंडमली आप ही याद करो, लास्ट आपने कब किसी से ऐसा सोशलाइज किया होगा विदाउट गोइंग विद, मतलब ऐसे फ्रेंड्स के म्यूचुअल्स अलग चीज होगी, बट अगेन रैंडम पीपल से आपने कहाँ पे सोशलाइज किया होगा? मोस्टली तो she knows every second person, शादी, पार्टी, कम्युनिटी, फ्रेंड्स, every, मतलब कोई भी हो, we contact her that who is this person. It's very good to have ऐसा एक ग्रुप में। We have 3. Problem is that we have 3 कि हम लोग को अगर किसी को भी पूछते हैं तो most of them know each other, कोई ना कोई किसी ना किसी को जानता है, तो कहीं ना कहीं that's a good point also because वो हमको बेनिफिट करते हैं कोलैबोरेशंस में। In eventing also we have a lot of friends that are into event organization, event companies, so वो भी एक पॉइंट था जो हम लोग को बहुत easy हुआ इवेंट के साथ कोलैबोरेट करने में, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारा यही पॉइंट था यार किसी से अप्रोच करेंगे कभी भी तो वो ना तो नहीं बोल देगा। एक वो डर था क्योंकि हमेशा से हम लोग फैमिली बैकग्राउंड में रहे, फैमिली बिजनेस में रहे, तो विदाउट गोइंग आउट फ्रॉम सूरत एंड गेटिंग इनटू दैट एक्सपीरियंस कि मैंने तो जॉब भी नहीं किया, एटलीस्ट ही इज डूइंग दैट जॉब, तो आई हैव टू नॉट डन दैट जॉब आल्सो, तो किसी से भी बात करना, बिकॉज ऑन फील्ड जैसे हम लोग का इन टेक्सटाइल बिजनेस आल्सो आई एम इनटू होलसेल थिंग, सो जैसे वो रिटेल इंटरेक्शन नहीं है मेरा, कंटिन्यूस इंटरेक्शन, तो स्टार्टिंग में एक फियर था यार कोई ना तो नहीं बोल देगा। सो अगेन वन ऑफ माय डैड्स फ्रेंड गिव दैट थॉट कि मेरे डैड कई बार मेरे को भेजते हैं उनके पास कि तू जा कुछ सीखेगा, जा जा जा, तो उनने एक थॉट दिया था वहाँ पे कहीं ना कहीं कि अगर तू किसी से भी कभी पूछेगा ना तो पूछने से डरना,
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ना ना ना, कितनी बार ना बोलेंगे, थप्पड़ तो नहीं मार देगा मैक्सिमम इज अ नो. सो तू नहीं पूछ रहा तो भी ना ही है, तो पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है. सो दैट्स व्हाट कहीं ना कहीं इनको मोटिवेशन मिला कि यार ठीक है ना, तो सबको सुनना पड़ेगा कभी ना कभी. और अभी हम पहले से सोचे कि यार जो हम सोचे ग्रीन लाइट सब अच्छा ही हो, सब अच्छा ही हो, तो फिर ऑब्वियसली नहीं हो पाए. तो स्टार्टिंग में हमने कोई इवेंट्स को अप्रोच किया जहाँ पे हमको उन्होंने बोला भी कि अभी तो आपके सिर्फ 1000 फॉलोअर्स है, सिर्फ 500 फॉलोअर्स है, तो आपको क्यों मतलब फ्री कोलैबोरेशन भी क्यों करें, लिटरली मतलब फ्री कोलैबोरेशन भी क्यों करें. एट दैट पॉइंट हमको दिमाग में दिया फ्री में तो कोलैबोरेशन कोई भी करे. अगर हमारे पेज पर डालने से अगर आपको 5 पीपल भी मिलते हैं, दैट्स अ फ्री थिंग, क्यों नहीं. तो उनको उसमें भी एक्चुअली लोगों ने क्वेश्चन किया कि 500,000 फॉलोअर्स पे अभी से आप कोलैबोरेशन बोल रहे हो, अभी से आप आ रहे हो. तो दैट्स वेयर द पॉइंट केम इन कि यार ठीक है, इतना टेंशन नहीं. उस समय एक बार सोचा मैंने यार लोग नाम बोल रहे हैं, लोगों से बात करना, बट उसके बाद कहीं ना कहीं वो पॉइंट था कि वो वाइब हो गया अपनी टीम कि ना सुनने से तो नहीं डरना. आज अपने ना सुन रहे, कल अपने नाम बोलेंगे. वो इसका पॉइंट था कहीं ना कहीं, आज तू सुन कर कोई और. तो मैंने बोला कि यार ठीक है कोई बात नहीं, ना सुनना. और कहीं ना कहीं इंटरेक्शन करना, जैसे एक रैंडम पीपल से इंटरेक्शन करना, दैट ट्रेड वो मेरे में आया कहीं ना कहीं K2 से. अच्छा, okay. Yeah, because K2 happens to be one of my cousin's property. अच्छा, okay. Yeah, so I also handled CEO over there. I was the CEO over there. Okay. Yeah, so right now also I work, but from the back end. I handle all the operations thing and marketing thing. So it's all back end, but again, getting to know people, getting to go into the events, my brother has played a major role in that. So he used to take me in the meetings everywhere. कि तेरे को चलना है. And I was curious because कभी भी किया ही नहीं, नॉट बीइंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट बैकग्राउंड और स्टार्टअप बैकग्राउंड, वो कभी नहीं किया. तो केप्ट ऑन गोइंग ओवर देयर, केप्ट ऑन डूइंग दैट. तो एक वो फियर निकला कि लोगों से बात कैसे करनी है, अपना पॉइंट पुट अप कैसे करना है. क्योंकि पॉइंट पुट अप करने से पहले एक हमेशा मन में डाउट रहता है कि कहीं सामने वाला उस पर कुछ मतलब सामने से ना बोल दे, हम गलत ना हो या हमारे फैक्ट्स कुछ गलत ना हो. तो ठीक है, बट अगर इतना टेंशन लेंगे तो फिर बोल ही नहीं पाएंगे. इसका मिरर में ही हूँ, मतलब इतना ज्ञान देता है. हमारे पास भी ऐसे देख के होता है. हाँ, सो बेसिकली कभी भी आज तक मेरे को ऐसा याद नहीं है कि मैंने कभी भी ऐसे कैमरा के सामने कभी कुछ रिकॉर्ड किया, बिकॉज आई डिडंट हैव दैट कॉन्फिडेंस ओनली. एंड टुडे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दैट कैमरा कहीं ना कहीं, एंड दैट हैज बीन बिल्ड अप बिकॉज ऑफ हैपनिंग्स विद मी. सो it plays a very big role in my life, not being from monetary perspective also, but again बहुत बड़ा रोल कि मेरे को सोशलाइज करना, मेरे को लोगों से बात करना, मेरे को इतना कॉन्फिडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आपने कभी कंपटीशन फेस किया है इस इंडस्ट्री में? Not as in competition, but we had a page, so we had around 5,000 plus followers जब they started. And I got a random text from that person only, from that page only, on our Instagram handle only, not my personal handle, कि your concept is this, we like this very much and we want to make this, we want to scale this up. So we would be very much happy if you guys come over with us. So मैंने एक ही चीज़ बोली थी इसको कि यार करेंगे तो खुद करेंगे और अकेले ही करेंगे, क्योंकि we didn't want that thing ना कि कोई हमारे बिजनेस में. It was all bootstrap, जितना भी स्टार्टिंग में जो मनी लगा बहुत बेसिक, बट अगेन bootstrap. तो हमको वो नहीं चाहिए था कभी भी कोई और इन्वेस्टर आए और हमारे आइडियाज पे खेले, और आगे जाके भी इन लॉन्ग टर्म ऑल्सो. वी डोंट वांट दैट थिंग कि कोई और सिर्फ मनी मॉनेटरी वाइज हमारे आइडियाज में इन्वेस्ट करे. वियर्ड तरीके से आते हैं, मतलब अभी आपका काम ही नहीं है, फिर आप उसमें घुसोगे कि जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग कि हमारा इतना बड़ा हो गया, तो सेंस नहीं है. मतलब वो भी घूम फिर के ऐसे अलग अलग, तो सामने से मेरे से आके पूछ ले, मैं वो सब बता दूंगा. आपने जो बोला मॉनेटरी वाला पॉइंट, इट वाज सो रिलेटेबल कि आज मतलब पॉडकास्ट भी स्टार्टेड क्यों पता है, क्योंकि हम कॉलेज में ना बहुत फ्री बैठे रहते थे. मतलब हमारे आधे टीचर्स नहीं थे, लेक्चर्स नहीं होते थे, तो डिफेमेशन का चार्ज वार्ज लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. यूनिवर्सिटी हटा देना, हटवा देंगे एपिसोड से. तो व्हाट हैपेंड वाज कि हम 4 लड़कियां हम बैठे थे क्लास में, एंड वी टॉक 24/7, वी आर लाइक ऑलवेज टॉकिंग. तो
तब हमको ऐसे स्ट्राइक किया. इट्स गुड अगर गॉसिप स्टेज से कुछ बन रहा है. हाँ एग्जैक्ट, दैट वाज द मोटिव कि, एंड वी वर नॉट ऐसे ही गॉसिपिंग बट अच्छी चीजों के बारे में भी हम ऐसे लंबा ऐसे बैठ के बात कर रहे थे. तो वी वर लाइक वी आर एनीवेज टॉकिंग, सो व्हाई नॉट लेवरेज इट इनटू समथिंग मीनिंगफुल. इसलिए मैं बोला था थोड़े दिन पहले यार, आप पूरे दिन जो गाड़ियों में करते रहते, घूमते फिरते, Exactly. बात करते यार. हम लोग की एक आदत है कि डेली, मोस्टली डेली और नॉट डेली तो 5 days a week हम लोग 1-1.5 घंटा तो हमारा वो मोटिवेशन किकिंग सेशन होता ही है. वो भी रात को 2 बजे 4 बजे होता है कि मतलब लिटरली वो सेशन चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना है, और वो मोटिवेशन हम दूसरों को देख के लेते हैं. हम लोग का एक वो पॉइंट हमेशा से रहा है कि खुद तो गलती करके सीख रहे, जो सीख रहे ठीक है, बट दूसरों की गलती सीख लो तो ज्यादा अच्छा. एग्जैक्टली. एंड तो तब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम गलतियां करते रहे और भी सीखते रहे. तो वो जितना जल्दी दूसरों की गलती सीख लो उतना बेटर है. तो हम लोग हमेशा से वो ट्राई करते हैं. एंड तब उस टाइम पे आई गेस सूरत में इतने सारे पॉडकास्ट थे नहीं, एंड हमारा ऐसा कुछ मोटिव ही नहीं था कि हमको बहुत ऐसे, वी वर रैंडमली सिटिंग, हम कॉलेज में ही बैठ के हम ऑडियो एपिसोड्स पोस्ट करते थे. एंड देन सरप्राइजिंगली हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. वी आर लाइक पीपल आर वांटिंग टू हियर अस टॉक, सो व्हाई नॉट. देन देयर इज दिस गाय हु केम इन एंड सेड कि चलो वीडियो पॉडकास्ट करते हैं. मैं करता हूँ शूट, मतलब आई डू इट. ऐसे 2-3 लोग और आए. फिर देन वी वर लाइक ठीक है करते. फिर वापस वो आया जो आपने बोला कि लोगों को बोलेंगे तो ना सुनने मिला, तो हम लाइक हम गेस्ट फ्री थोड़ी बैठे हमारे लिए. हम उनको क्या हमारे पास इतना ऑडियंस भी नहीं है तो हम क्या बोल के उनको बुलाएंगे. बट पीपल वर सो ईगर, मतलब सामने से ऑल्सो पीपल वर कमिंग, पीपल वर सो ईगर टू कम. देन आया लोकेशन का कि कुछ मॉनेटरी इन्फ्लक्स तो है नहीं, तो हम लोकेशन कैसे. इवन उधर भी पीपल वर सो सपोर्टिव, वी वर सो सरप्राइज्ड उस चीज से. एंड वी टोटली अग्री. आपने जो बोला कि क्या है ना ही तो सुनने मिलेगा, देयर आर और भी मिल जाएंगे और ऑप्शंस. बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लोगों से रिस्पॉन्स आ रहा था. आई मीन कहाँ से लोग ऐसे आ रहे कि यार यू डूइंग गुड, तो वो अप्रिसिएशन अच्छा लगता है सुनने. एंड स्टार्टिंग में when we had 500 followers ना, तो उस समय जब 500 के बाद एक बार थोड़ा स्लो हुआ था. हाँ, From 500 till 1000 it was a थोड़ा बिग जर्नी. तो उस समय we had so many messages, big messages. आज भी शायद मेरे पास फोन में स्क्रीनशॉट्स है उसके. Not to share anyway, कभी भी. But again for my record, for my that thing कि यार ये चीज़ थी जो मेरे पास यहाँ तक लेके आई. तो उस समय लोगों ने लिटरली पैराग्राफ्स लिखे कि देयर वर पीपल जो सूरत में शिफ्ट हुए थे अभी रिसेंटली, अ ईयर बैक, 2 years बैक. सो दे वर लाइक फॉर द यूनिवर्सिटी थिंग, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे पढ़ने भी आते हैं, जो हमको नहीं पता लिटरली आया जो डिडंट न्यू. कितने लोग हैं जो बाहर से सूरत भी आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए. तो वी गॉट दैट क्राउड ऑल्सो कि उनने लिटरली मैसेजेस भेजे. कई लोगों ने जो न्यूली मैरिड है सूरत में, उनने हमको टेक्स्ट किया कि यार दिस पेज इज सो मच हेल्पफुल, वी नीड टू सोशलाइज. बिकॉज आज कैफेज के अलावा देयर इज बहुत कम पॉइंट जहाँ पे सोशलाइज कर सकते हो. एंड गेम्स नाइट ऑल्सो जो हमने ऑर्गेनाइज किया था, लिटरली हम लोग जब गए ऊपर, जैसे हम लोग वी वर डाउनस्टेयर्स कि हम लोग रजिस्ट्रेशन और ये सब हैंडल कर रहे थे. सो वी हैड मस्ट ऐसा एंट्री गेम. सो इट वाज अ फ्री इवेंट. सो व्हेनेवर अ पर्सन कम्स नो, सो यू हैव टू पॉम दैट थिंग इन द बास्केट. There were 6 baskets and you have to palm that ball. If you palm that thing, then only you get the entry. So that's the condition. Start of the games night. तो हम लोग उधर थे, तो हम लोग ऊपर गए, तब तक देख रहे हैं जो 2 का ग्रुप आया था वो 4 का बन गया है. जो 4 के आए थे वो 6 के हैं. जो लोग 2 आए थे वो 8 की टीम्स बना के गेम्स खेल रहे हैं. सो वो हमारा मोटिव था कि वी वांट पीपल टू सोशलाइज. एंड उससे जो हम लोग को इनसाइट्स भी मिले थे, जितने लोगों ने बोला, टेक्स्ट आया, हमको रिप्लाईज आए, it was so fun and we got to know new people. We had a group of around 10 to 12 from medical background. वो साइंस ले रखे हैं, वो वैसे ही नहीं मस्ती इतनी करते. तो उनका ये पॉइंट था यार आपने ये रखा, तो मेरे को लगता है कि बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसा बाहर आए और पूरे ग्रुप के साथ हम एंजॉय करने आए. यहाँ पे हमको जगह मिली, तो उनने इतनी देर खेला एंड दे वर टिल एंड. जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एंड तक दे एंजॉयड सो मच. दे हैड फूड, दे हैड गेम्स. तो वो पॉइंट था, सोशलाइज करवाना बहुत जरूरी है. बिकॉज वी ऑल्सो वांट कि अगर कहीं ना कहीं वो कस्टमर में प्रॉब्लम्स आ रही है जो इवेंट अटेंड कर रहे हैं, तो उनको पहले से पता चले कि अगर आगे जाके हमको कोई प्रॉब्लम फेस होने वाली है तो जो गलतियाँ दूसरे कर रहे हैं हमको नहीं हो. तो वी ट्राई टू गेट ऑन फील्ड. मोस्टली वी ट्राई टू गेट ऑन फील्ड. आई, गोविंद, वन ऑफ आवर टीममेट वत्सल, 4 टीममेट्स कुश्ती, वी ट्राई टू गेट ऑन द फील्ड कि हम लोग फील्ड पे रहें. बीइंग टीममेट, टीम हैपनिंग सूरत, कि हम लोग एक्सपीरियंस करें एज अ
मतलब अटेंडी ऑल्सो एंड एज द टीम ऑल्सो, टीम क्या डिफिकल्टीज फेस कर रही है, अटेंडीज क्या डिफिकल्टीज फेस कर रही है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे गाइडेंस की इशू है, यू नो द इवेंट, यू नो एवरीथिंग, बट अगेन गाइडेंस, पार्किंग कहाँ पे करती है सबसे बड़ी थिंग। सूरत में बीइंग दैट थिंग, बहुत कम जगह जैसे पार्किंग जहाँ पे अलॉटेड होती है, पार्किंग कहाँ पे करनी है, तो वी हैड स्टार्टिंग में डाउट्स ऑल्सो कई बार कि इसमें पार्किंग क्या करनी है, तो लिटरली एट दैट टाइम हमने लोगों को पार्किंग सॉर्ट कर दी। मेरा इवेंट भी नहीं है, हम लोग का इवेंट नहीं है, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। हमने पार्किंग सॉर्ट कराई है कि हमने मैप का उनको स्क्रीनशॉट लिटरली मार्क करके भेजा है कि दिस इज द लोकेशन, यू कैन दिस इज द पार्किंग एरिया। वो इवेंट उन्होंने नहीं दिया है, बट अगेन दैट्स व्हेन हमको कहीं ना कहीं समझ में आया यार ये इशू है ये, तो वी आर लिस्टिंग डाउन कि हाँ इंडस्ट्री कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रही है, बिकॉज बीइंग इन द इंडस्ट्री आई एम नॉट ऑर्गेनाइजिंग, बट अगेन आई हैव टू बी इन दैट इंडस्ट्री, आई हैव टू बी दैट थिंग कि मेरे को एक प्रॉब्लम्स पता है, सो आई कैन ब्रिंग सॉल्यूशन समटाइम दैट फॉर दैट आल्सो। मार्केटिंग में ना एक कंसेप्ट होता है कस्टमर या कंज्यूमर वो जर्नी, वो चीज जो हम दोनों के बीच में ट्यूनिंग बैठ, मतलब आप सोच इतना तो एक कस्टमर भी नहीं सोचता होगा कि मेरी जर्नी वो प्रोडक्ट तक कैसी होने वाली है, उससे पहले हम 15 वेरिएशन सोच लेते हैं, तो वो चीज जो क्रैक की है ना अनबीटेबल है। दैट्स व्हाट हम लोग का यूएसपी कहीं ना कहीं, हम लोग ट्राई करते हैं ट्रैक डाउन करने का टू द होल थिंग, बिकॉज वी डोंट वांट, हम लोग को कभी भी एक चीज प्रॉब्लम, हमेशा एक डाउट माइंड में रहता है कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं तो हमको ब्लैंक नहीं होनी चाहिए कभी भी, और यू शुड नॉट हैव दैट फैक्ट जो गलत हो। हम लोग नहीं बोलेंगे दैट वर्क्स, बट अगेन गलत चीज नहीं। आपने जो एक स्टेप लिया है कि इवेंट्स लाइक नॉट बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर स्टिल लाइक ऑप्टिंग फॉर कि मतलब लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, लाइक लेट देम सोशलाइज, तो इट्स गुड because no one takes this responsibility of making other people move, so I feel it's a great step. So this responsibility came in and घर से भी बहुत supporters हैं, मतलब all of them, literally like all of them. Today also my father कभी भी कोई भी travel कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, even his friends जो मतलब सुबह ऑफिस जाते रात को आते घर किसी मतलब भी नहीं है, अगर वो उनसे मिल रहे, अगर वो हाफ एन आवर में बोल रहे हैं ना, he make sure that person is following that page. कुछ भी हो, अगर वो सूरत का है ना, he be following that page. Wow. My parents make sure that my मतलब जो एकदम रियल वंस है, जो एकदम नियर वंस है, everyone makes that thing sure कि वो फॉलो कर रहे हैं, और जो उनसे मिल रहे हैं वो उनको भी फॉलो करवा रहे हैं। तो अगर जैसे कई बार होता है कि कोई म्यूचुअल्स मिलते हैं तो इंट्रोडक्शन ही अब ऐसा हो गया, अरे वो हैपनिंग सूरत है ना, ही इज हैपनिंग सूरत, अरे नो आई एम चिराग झुंझुनवाला, आई एम डूइंग समथिंग, आई हैव अ पर्सनल आइडेंटिटी। तो मैंने बोला आइडेंटिटी मत बदलो, आई एम दैट पर्सन, दैट बिजनेस इज माय थिंग, दैट कांसेप्ट इज माय थिंग, बट अगेन ये हैपनिंग सूरत है, मैंने बोला नहीं, आई एम चिराग, हैपनिंग सूरत इज माय प्लेस दैट आई एम हैंडलिंग। या बीइंग फ्रॉम द मास कॉम बैकग्राउंड, मतलब मार्केटिंग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं हम, तो आप मतलब आप मार्केटिंग में फुल टाइम यू आर वर्किंग राइट नाउ, तो मार्केटिंग में भी मतलब इतना डायनामिक है, एवरी डे यू हैव टू बी ऑन लूप, इवेंट का भी इतना डायनामिक है, एवरी डे यू हैव टू बी ऑन लूप्स, हाउ डू यू फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ, मतलब बहुत कंसर्न है मेरा ये थोड़ा। देना ही नहीं है, मिलता नहीं है, टाइम भी नहीं देना चाहते और ऑनेस्टली मतलब नहीं मिलता है, मतलब इसका और हमारा कैसा है ना, मतलब अभी मैं कहीं से चलते हुए जा रहा हूँ, मेरे को कुछ दिख गया ना, मैं उसको फोन कर दूंगा कि भाई यहाँ पे ना कभी यहाँ से गुजरे तो ये देखना, भाई ये ऐसे कर सकते हैं, इसने ये मतलब ऐसे रैंडम आइडिया शेयर कर, जैसे गर्ल्स गॉसिप शेयर करती है 10 टाइम्स ज्यादा, तो मतलब दिन में 50 फोन तो चिल्ला के खाली टाइम पास के लिए आएंगे, टाइम पास नहीं कि भाई ये चीज कर सकते हैं, बैकग्राउंड वर्क, आउट टाइम, लेकिन बहुत हार्ड वर्क है, मतलब ऑनेस्टली क्योंकि वो फुल टाइम है। एग्जैक्टली, क्योंकि मार्केटिंग भी क्रेजी चीज है, मतलब एवरी डे हैव टू बी ऑन लूप एंड यू आर he is the वर्किंग। team leader over there, something like I am the that. team leader, so I am leading a team of 6 people as well. ओके, वेयर डू यू वर्क? I am working in a marketing agency. I work Okay. there. So that's the thing कि he is working over there, और उसके बाद भी हम लोग मेरे साथ एक क्या चीज़ है, that also came into me from my dad only, कि जो चीज़ बोल के ना वो हो जानी चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी आदत करते, मेरी क्या जनरल जेंसी की आदत करते हैं हाँ, सो अगेन बहुत बुरी हैबिट है भाई, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने प्रॉब्लम भी फेस कर ली है उसमें कि वो करते करते हम लोग लास्ट में हम लोग फंसते ही हैं, तो वो चीज़ डैड ने सिखाई, बट अभी भी कई बार तो होती है। अभी जैसे यू गाइस आर मार्केटिंग प्रो, तो हाँ, सारे इवेंट्स को स्पॉटलाइट देकर आप तो हमको भी रियल एडवाइस के लिए Tips. दो
टू रीच आउट, क्योंकि आप लोग सूरत के पब्लिक को ना बहुत अच्छे से समझ चुके हो ना. हमारा बेस तो वही है एज अ पॉडकास्टर कि सूरत के पब्लिक को सबसे पहले हमको रीच आउट करना है. तो और हम क्या कर सकते हैं? ट्रेंड्स तो कर लेते हैं, फॉलो सोशल मीडिया कर लेते हैं, और ऐसे ग्राउंड लेवल पे क्या? ट्रेंड्स इज गुड, बट अगेन कोई भी सोशल मीडिया एजेंसी बना, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट अगेन जो लाइन जो मेरे दिमाग में आती है और जो थॉट मेरे दिमाग में आते हैं ना, ट्रेंड्स आर गुड, ट्रेंड्स ब्रिंग यू इन स्पॉटलाइट, बट अगेन ट्रेंड्स, मेरे को नहीं लगता कि ट्रेंड्स बहुत ज्यादा आपको कस्टमर कन्वर्ट करने में. एग्जैक्टली. आप कितना भी ट्रेंड फॉलो कर लो, आप स्पॉटलाइट में आओगे धीरे धीरे, बट दैट सबकॉन्शियस माइंड में आपका ब्रांड वैल्यू बनता है. और सबकॉन्शियस माइंड में ब्रांड वैल्यू बनता है, उसकी बहुत मिनिमल मतलब वैल्यू कहीं ना कहीं है उस चीज से, ट्रेंड से. सो एक वो बाइफर्केशन भी है कहीं ना कहीं कंपनीज में, एजेंसीज में, कैफेज में, कि हमको ट्रेंड फॉलो करना है या नहीं करना है. उसके लिए ट्रेंड तो बेसिकली ब्रांडिंग पर उनका ये पर्टिकुलर ट्रेंड पे ये टेक था, ये ब्रांड का ये. बट आप लोग का जहाँ तक पॉडकास्ट है, मैं तो यही बोलूंगा कि प्लीज फोकस ऑन लॉन्ग फॉर्म ओनली. मतलब ये रील्स भी ठीक है, मतलब दैट सो अगेन रील्स का जो पॉइंट है ना, ही इज करेक्ट कि लॉन्ग फॉर्म है, बट लॉन्ग फॉर्म के लिए भी कहीं ना कहीं वो जो एक आता है ना, जरूरी नहीं है हर जगह यूट्यूब पे आपको ढूंढ रहा हो या यूट्यूब पे आके पहुंच रहा हो, तो वो पहुंचेगा कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट से. तो वो छोटे क्लिप्स जो इंस्टाग्राम पे रील्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे लैंड करवाने के लिए. क्योंकि वही जो कैची थिंग्स हैं, जो कैची लाइन्स आएगी, जो शॉर्ट क्लिप्स होंगे ना, वो एक ऐसा लगेगा यार इसने मेरे को 15 सेकंड्स में अगर इसने इतना बूस्ट दिया माइंड में, तो कहीं ना कहीं मेरे को इसका पॉडकास्ट देखना चाहिए. एंड लैंडिंग टू दैट यूट्यूब लिंक, वो भी एक लूप, बड़ा चैलेंज है, लूप है वो भी, कि जरूरी नहीं है जो आप रील देख रहे हो लाइक उसको लाइक कर देंगे, उसको शेयर कर देंगे, उसको सेव भी कर लेंगे और उसको वापस देखेंगे भी नहीं. लिटरली देयर आर पीपल जो सेव करते हैं, सेव करके रख रहे हैं, वो सेव भी कर रहे हैं सालों से. जो सेव होता है वो तो सेव तो मूड के हिसाब से भी उस. और मेरा सेव दीदी रात को खुलता है, क्यों इसको भेजने कि आज मैंने क्या ढूंढा, आज मैंने क्या देखा, वो उसको भेजता हूँ, फिर रात को उसको मस्त ज्ञान देता हूँ और मैं अपने आप को बस समझ लेता हूँ कि हाँ मैं भी कुछ स्पीकर हूँ, मैंने ज्ञान भेज दिया. 6-8 रील एक साथ भेज देगा और एक भी नहीं देखी और 2 दिन बाद होता है कि हम ही वो रील उसको वापस भेजते हैं, जो पिन करके सुनाएगा. हाँ मेरे को वही वापस भेजा 2 दिन बाद. मैंने बोला ऊपर जाके देख कि मैंने ही भेज दिया तो तूने ध्यान नहीं दिया. तो लिटरली बीच में एक बार चीजें थी, मैंने कुछ काम की चीज को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दिया होगा, भाई तू व्हाट्सएप पे गया. एग्जैक्टली, दैट इज आई एम विद यू. अरे ये यार इंस्टा पे वो रील्स से रील्स स्क्रॉल होनी चालू हो जाती है. अभी ऐसे तो ये मेरे को हमेशा यही बोलता है, कुछ भी काम की चीज है तो व्हाट्सएप किया, तो इसमें करते वो मिस हो जाती है मेरे से. Thank you so much guys for coming and taking out time for us from your happening schedule. It was a wonderful conversation and we will come again with such conversations and episode. Till then, keep listening and watching the Weird and Wise podcast. Thank you.